सजाद मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। Thank you very much and I'm glad to have you again. So we'll be starting by 9 o'clock inshallah. थोड़ा सा ओके लंबा है लेकिन मेरा ख्याल है आप क्विकली गो थ्रू कर लेंगे। पहले पे हम ज्यादा स्टेनोटिक और रिगर्जिटेंट उसके ऊपर फोकस करेंगे। नेक्स्ट तो काइंड ऑफ रिवीजन ही हो जाएगी। माइट्रल पे ज्यादा फोकस करेंगे। दोनों स्टेनोटिक और उनके कंसर्न्स तो सेम ही है, बस लोकेशन का डिफरेंस है, बाकी चीजों का है। तो पहले वाले को, शुरू वालों को जो है स्टेनोट माइट्रल स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन को डिटेल में कर लेंगे। नेक्स्ट की तो जस्ट क्विकली इंटरेक्टिव रख के तो रिवीजन कर लेंगे। क्या ख्याल है? ओके मैम। शुड वी स्टार्ट और वेट फॉर? विल स्टार्ट बाय 9:03, 3 past 9 ओके मैम। इंशाल्लाह। ठीक है। ओके मैम। निशान मोहम्मद डाल बहुत दार हुई।
Assalamu alaikum everyone. It's Dr. Sadhir. Today again we are having Dr. Farjad Ikram. Dr. Farjad will be talking about the valvular lesions and their concerns during the perioperative period for non-cardiac surgeries. Dr. Farjad, over to you. Welcome everyone. Can you hear me all right? Yes, we can All right. hear you. Let's start. So before I jump into this topic, all right. Sorry. पहले हम लोग जो है सिंपल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक साइकिल एंड हार्ट वाल्व्स को टच करेंगे बिकॉज इवन तो हम लोग जब भी कोई एडिट साउंड सुनते हैं इंसिडेंटली मर्मर डिटेक्ट करते हैं ऑल वी being in a tertiary care hospital we go straight forward to an echo लेकिन sometimes even in our hospital setting it is echo 24/7 available नहीं होती है emergency surgeries present कर सकती हैं we need to be able to detect कि diastolic है systolic है और इसके differentials क्या हो सकते हैं so in the developed world 4% of the patients over the age of 65 years of age have valvular heart lesions so imagine कि underdeveloped world जहाँ पर malnourished लोग होते हैं congenital heart disease भी ज़्यादा होती हैं this percentage would be higher so hence the significance of detecting this early so anesthetist is required to assess the significance of the lesion for that proposed surgery its severity of the valvular heart disease and any related concomitant disease और ये हम लोग को डॉक्यूमेंट करना होता है अपनी असेसमेंट फॉर्म पे भी वी हैव टू प्लान द एनेस्थीसिया care according to the severity of the disease, the hemodynamic or clinical involvement, and the nature of surgery. Also, we have to establish if the endocarditis prophylaxis is warranted or not. So, first of all, कि हमने जब भी heart sound सुननी है तो the correct way of holding the chest piece is to hold it between your index finger and middle finger and placing it over the chest. And when we are doing this, we have to always palpate the carotid artery or a radial artery or any artery for that reason ताकि हमें पता लग सके कि हम लोग systolic murmur है या diastolic murmur है. So moving on to the बेसिकली हमें कार्डियक साइकिल पहले रिवाइज करना चाहिए कार्डियक साइकिल शुरू होता है फ्रॉम द फिलिंग ऑफ द हार्ट सो वी हैव टू
started from the diastole. First, the ventricles need to fill. For that purpose, we need the atrioventricular valves or the mitral or tricuspid valves to be open, so the blood can flow from the atria into the ventricles. Once near the end of the diastole, जब काफी सारा blood आ जाता है ventricles में, the isovolemic contraction starts. जब प्रेशर इतना वेंट्रिकल्स में रेज हो जाता है तो द एवी valves or the tricuspid or bicuspid valves, they close, mitral valve, and this makes a sound that is like lub. It's called the S1 sound. It marks the start of systole and the end of diastole. Once the pressure is high enough in the ventricles, the semilunar valves or the aortic or pulmonic valves, they open. When they open, the blood will eject from the ventricle into the aorta or the pulmonary artery, and the systole would begin. At the end, जब ventricles का pressure वापस normalize हो जाएगा, सारा blood eject हो जाएगा, the pulmonic and the aortic valves, they will close and they will make another sound that is called S2, and it sounds something like dub. So in the cardiac cycle, S1 precedes S2, and the period between S1 and the S2 is the systole. It is shorter than the period between the S2 and the S1, which is diastole. But this is in a resting heart. Tachycardia के अंदर actually the time for diastole decreases so much कि वो systole के time से भी कम हो जाता है. So that is why we need to palpate the carotid artery or a radial artery with it, so we can decide कि कौन सा S1 है, कौन सा S2 है, because in tachycardia this might reverse. Two और sounds होती हैं हमारे पास. There is a third heart sound, वो physiological और normal conditions में present हो सकती है, but it could also be pathological. अच्छा इनको मैं सुन. हाँ, नॉर्मली ये बच्चों के अंदर और फीवर की कंडीशन के अंदर जहाँ पर हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन हो रही होती है, एनीमिया के अंदर जहाँ पर बहुत क्या कहते हैं नॉन विस्कस होता है ब्लड, एथलीट्स के अंदर और प्रेगनेंसी के अंदर ये नॉर्मली सुनाई देती है. इट कम्स राइट आफ्टर द S2. इट कैन आल्सो बी पैथोलॉजिकल, स्पेशली इन द एल्डरली, जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है या माइट्रल रिगर्गिटेशन होती है. देन देयर इज अ फोर्थ साउंड. इट इज द लास्ट साउंड, पर इसको भी डिफरेंशिएट करना आना चाहिए क्योंकि कुछ लोगों में S3 और S4 भी प्रेजेंट होती हैं. उनको क्वाड्रुपल गैलप कहते हैं. So there are 4 heart sounds. So imagine it can confuse us so much. S4 is always pathological, and it is caused by a forceful atrial contraction against a non-compliant or stiff ventricle. The common causes are left ventricular hypertension, जो कि long-standing uncontrolled hypertension की वजह से हो सकती है, और aortic stenosis के अंदर ये हो सकती है, और हुक्म के अंदर hypertrophic obstructive cardiomyopathy के अंदर present होती है. So एक ये मैंने स्लाइड इसलिए डाली है बिकॉज हमारे एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन आता होता है कि कौन सी हार्ट साउंड ईसीजी के कौन सी वेव के साथ कोरिलेट करती है. R wave coincides with S1. The T wave coincides with S2. मैंने नीचे ईसीजी पर ये एक रेड कलर का बॉक्स भी इसलिए इसके साथ मार्क किया. एंड S3 it comes between the T and the P waves, and S4 comes between P and Q waves. So ये most likely रट्टा मारने वाली चीज़ है, लेकिन this is still necessary for you to know for the exams and the boards, और especially अगर आप कैरोटिड वगैरह पल्पेट नहीं कर सकते, जैसे सर्जरी हो रही है वगैरह, तो फिर आप ईसीजी को देखकर तो डिसाइड कर सकते हो ये कौन सी हार्ट साउंड है, S1 है, S2 है, S3 है, S4 है. Moving on to murmurs, they are systolic murmurs, diastolic murmurs. Sometimes they are continuous machinery like murmurs जो पीरियड में सुनाई देती हैं. इसके लिए हम लोग ने एक mnemonic भी बना सकते हैं, past and paid. Basically, pulmonic and aortic stenosis are systolic murmurs produce करती हैं, और pulmonary and aortic insufficiency or regurgitation are diastolic.
और माइट्रल और ट्राइकस्पिड डिफेक्ट्स के लिए ऑपोजिट टाइमिंग्स होंगी। माइंड यू मोस्टली मर्मर्स जो होती हैं एक्चुअली इनोसेंट होती हैं। अगर आप डिटेक्ट कर भी लेते हो किस तरह के पेशेंट में कि जिनके अंदर पहले कोई वेल्वुलर हार्ट डिजीज की हिस्ट्री नहीं है, चांसेस आर के उनके अंदर हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन होगी और वो जस्ट इनोसेंट मर्मर्स हैं। We still need to investigate because it's still a risk कि maybe it is some significant valvular heart disease. टाइमिंग्स ऑफ कॉमन मर्मर्स ये हम आगे डिस्कस करेंगे जिससे हम बारी बारी साइड डिजीजेस डिस्कस करते हैं। सो आई लीव इट फॉर देयर। लोकेशन ऑफ मर्मर्स, जब भी हम लोग हार्ट ऑस्कल्टेट कर रहे होते हैं तो हम लोग को एटलीस्ट 4 or 5 एरियाज ऑस्कल्टेट करने चाहिए। वी यूजुअली स्टार्ट विद द एपेक्स which is also known as the mitral area, and we move on to the tricuspid area which is on the left sternal border between the in the fourth intercostal space. We move on to pulmonic area, which is in the second intercostal space on the left sternal border. And then we move to the aortic area, which is on the second intercostal space in the right sternal border. There's a Erb's point, एक fifth point होता है, which is in the third intercostal space on the left sternal border. यहाँ पर aortic regurgitation की हमें मर्मर सुनाई देती है। वेरिएशन विद रेस्पिरेशन के अंदर एक ही पॉइंट याद रखने वाला है कि जो लेफ्ट साइडेड वर्सेस राइट साइडेड मर्मर्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए वी हैव टू आस्क द पेशेंट टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट देयर। इफ द मर्मर इंक्रीजेस विद इंटेंसिटी इज मोस्ट लाइकली अ राइट साइडेड heart disease. If it decreases in intensity, it is a left-sided heart disease. For example, आपने mitral stenosis और tricuspid stenosis के बीच में differentiate करना है, so we will ask the patient to inhale deeply. If the intensity of the murmur decreases, it is a mitral stenosis की murmur, and if it increases, then it most likely a tricuspid murmur की stenosis. This is also called the Carvalho's maneuver. It has a sensitivity of 100% and specificity of 80 to 88% in detecting murmurs originating in the right heart. So moving on to the actual topic of our presentation, that is mitral stenosis, valvular heart diseases. We will begin with mitral stenosis. The causes of mitral stenosis are various, rheumatic heart disease being the most common. The second most common being the senile age-related changes due to calcification of the valve. More uncommon causes are radiation, congenitally malfunctioning mitral valve, systemic lupus erythematosus, and very rarely Fabry disease, Whipple disease, जिनको हम लोग यहाँ पर कभी देखते भी नहीं हैं. They can also cause mitral stenosis. Moving on to the pathophysiology. What happens in mitral stenosis? The mitral valve will be tight, so the left ventricle will not be able to fill. एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आना है लेकिन वो नहीं आ सकेगा ड्यू टू अ टाइट वेल्व. सो इट इज अ अंडरफिल्ड वेंट्रिकल एंड एट्रिया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर दे विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर. इनिशियली द लेफ्ट एट्रियम जो है वो डायलेट होगा. इट विल अलाउ द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स टू रिमेन इन लिमिट्स, पर लेटर दिस पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर भी राइज होना शुरू हो जाएगा. पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी और राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी डेवलप हो सकता है. अगर लेफ्ट एट्रियम डायलेट हुए जा रहा है, दिस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन. अगर एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप हो जाती है तो ये एट्रियल किक जो होती है हमारी वो भी लॉस्ट हो जाएगी और लेफ्ट वेंट्रिकल और भी पुअरली अंडरफिल होगा. सो कार्डियक आउटपुट फर्दर डिक्रीज हो सकता है और सडनली हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है पेशेंट को, या उसकी एक्सेसरबेशन हो सकती है. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग सीन के माइट्रल स्टेनोसिस पेशेंट्स के अंदर डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जब कार्डियक आउटपुट डबल हो जाता है तब सडनली वो पेशेंट डिकम्पनसेट करता है, हार्ट फेलियर के साथ एडमिट होता है. कभी कभी इस तरह से भी होता है कि हम लोग पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं और उसके बाद वो डिकम्पनसेट होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेगनेंसी के अंदर आप पूछें कि पेशेंट को फटीग तो नहीं होती, उसकी फंक्शनल कैपेसिटी क्या है. हो सकता है ये माइट्रल स्टेनोसिस हो सकता है कि ये
peripartum cardiomyopathy हो, but it is very important in pregnant patients to take a detailed history of cardiac symptoms and functional capacity. Because the left atrium is also dilated, it predisposes the formation of thrombus in it. So patients can suddenly collapse जब systemic embolization होगी ना. The symptoms of this disease include dyspnea, hemoptysis because of pulmonary hypertension, recurrent bronchitis इनको बार-बार होता है इन patients को, palpitations is very common, वो hoarseness तक होती है क्योंकि left atrium जो है जब बहुत ज़्यादा dilate हो जाता है तो हमारी recurrent laryngeal nerve को भी irritate करता है. The signs include peripheral cyanosis because obviously cardiac output कम है, Meller flush, but this is actually another variant of cyanosis क्योंकि purple type फ्लश होता है. अगर पेशेंट को एफिब है तो इरेगुलर पल्स होगी. हम लोग साइंस ऑफ राइट हार्ट फेलियर अगर देखते हैं तो इट मींस कि एडवांस डिजीज है कि उसने राइट साइडेड डिसफंक्शन भी कर दिया है. हमें टैपिंग एपिक स्पीड सुनाई देगी. हमें S2 के बाद एक ओपनिंग स्नैप सुनाई देगी and there will be a mid diastolic murmur at the apex. In the ECG we will see a bifid P wave because of the dilated left atrium. Atrial fibrillation might be present. RV strain signs might be present. On chest X-ray, we will see a large left atrium. This is also called mitralization. There will be splaying of the carina because left atrium इतना dilate हो जाता है कि ये दोनों bronchuses को upward displace करता है. तो इससे लगता है कि carina जो है वो और ज़्यादा उसका angle increase हो गया है. Curly B lines will be present if there is heart failure क्योंकि some sort of pulmonary edema of some degree will be present. So mitral stenosis के लिए डायग्राम मैंने डाली है. S2 की बाद एक ओपनिंग स्नैप आएगी, आपको सुनाई देगी, and there will be an increasing intensity of a murmur or rumbling quality. Rumbling means के it will be a very noisy, it will not be musical like, and will only end with the S1. So mid diastolic murmur, सबसे पहले S2 आती, it would be loud followed by an opening snap and then a low pitch mid diastolic rumbling murmur, which is a crescendo nature because ये आहिस्ता आहिस्ता loud होती जाती है and then it will end with the loud S1. This murmur will obviously become softer with inspiration and that's how you will be able to differentiate with the mid diastolic murmur of the tricuspid stenosis. वो चूंकि राइट साइड हार्ट लीजन है तो वो इंस्पिरेशन के साथ उल्टा लाउडर हो जाएगी. Now for severity of mitral stenosis, this table will be obviously very difficult to memorize, पर हमें valve area बहुत significant होता है, especially for stenotic lesions like mitral stenosis, even more so for aortic stenosis. We call it severe when the valve area is less than 1 centimeter square. Between 1 to 1.5 is moderate, between 1.6 to 2.5 is mild, and normally it is has a size of 4 to 6. A mean gradient is also important. If the gradient across the valve is greater than 10, this would be severe. And the pulmonary artery mean pressure, कुछ लोगों के अंदर gradient भी कम होता है, valve area भी significant नहीं होता, उन फिर भी आपको mean pulmonary arterial pressure लाजमी देखना चाहिए. If it is greater than 50, that means कि आप इसको anesthesia देंगे, is very high likely chance कि वो decompensate कर देगा. Now planning surgery for these patients. Asymptomatic patients हैं जिनके अंदर कोई fatigue नहीं है, palpitations नहीं है, they can tolerate non-cardiac surgery well. But patients with poor functional capacity, let's say METs less than 4, would need cardiac optimization and even possibly valve surgery before an elective non-cardiac surgery, especially if that surgery is major and involves big fluid shifts. Now planning our anesthesia plan, जब भी हम लोग अपना plan present करेंगे, we need to have certain goals in mind. And इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या risks हैं, हमें कौन से monitors चाहिए, हम लोग कौन से anesthetic safely दे सकते हैं, हम लोग अगर हेमोडायनामिक सपोर्ट स्टार्ट करनी पड़ेगी तो आइडियल वेजोप्रेसर या आइनोट्रोप कौन सा होना चाहिए और पोस्ट ऑप केयर हमें क्या देनी पड़ सकती है.
So perioperative goals, heart rate should always be kept low normal. And we have to treat tachycardia promptly. Why is that so? क्योंकि अगर हम लोग tachycardia करेंगे तो diastolic time और कम हो जाएगा और left ventricle को और थोड़ा time मिलेगा fill होने के लिए. So this will further lessen the cardiac output and exacerbate the entire situation, maybe even precipitate heart failure. So we have to keep the heart rate low normal. Mind you, I did not use the word low heart rate. I said low normal heart rate. So around 50 to 60 or even 70 is ideal, but avoid 80, 90, 100 and above 100 is absolutely not allowed. We have to keep the rhythm sinus. अगर patient को पहले से AFib है तो that is another thing. पर अगर इंट्रा ऑप एकदम से रिदमिया स्टार्ट होता है, उससे AFib होता है, we have to cardiovert it very promptly. You have to keep the SVR on the high normal क्योंकि पहली cardiac output low है. So if we want to keep the organs perfused, we have to keep the vessels tight. हम लोगों ने उनका blood pressure raised रखना है. जरूरत पड़ने पे हम लोगों को vasopressor होती है तो उसे फौरन ट्रीट करें. We have to keep the preload adequate, पर इतना ज्यादा नहीं कि patient fluid overload में चला जाए. तो हमने साथ साथ उसका हार्ट रेट भी नॉर्मल रखना है, लो नॉर्मल रखना है, उसके एसवीआर भी हाई रखना है, और फिर हम लोग फ्लूइड देंगे तो उसका फायदा होगा. अदरवाइज वी विल ओनली बी एक्सेसरबेटिंग द हार्ट फेलियर. कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर रिड्यूस्ड होती है देन we are supposed to avoid cardiodepressants first and then use inotropes if we can, but without raising the heart rate. अगर pulmonary involvement है तो obviously we are going to avoid hypoxia, hypercarbia and acidosis because they are going to exacerbate the pulmonary hypertension. The risks, as we can already predict, arrhythmias हो सकते हैं हमारे पास क्योंकि we have a dilated left atrium, congestive heart failure हो सकता है, embolization because thrombus पड़ा हो सकता है, and even cardiac arrest. Monitors में we have to use the invasive blood pressure monitoring, और इफ पॉसिबल स्टेनोटिक लीजन्स के अंदर हमेशा इंडक्शन से पहले हम लोग को ए लाइन डालनी चाहिए. हम लोग पल्मोनरी आर्टरी फ्लोटेशन कैथेटर यूज कर सकते हैं. माइंड यू सीवीपी और जो हमारा ये पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर होते हैं ये इतना हेल्प आउट नहीं कर पाते जब हमारे पास राइट साइडेड डिसफंक्शन होता है क्योंकि रेस प्रेशर्स नहीं आएंगे. ट्रांस इसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी आपने हमेशा बताना है, although it is obviously a very advanced technique. इसके लिए स्पेशलिस्ट हेल्प चाहिए होती है इनको इंटरप्रेट करने के लिए, और कभी कभी ये सर्जन के एयरवे एक्सेस एयरवे से थ्रू जाता है इसोफेगस में, तो सर्जन अलाउ भी नहीं करते कि हमसे पास करें. एनेस्थेटिक के अंदर जब भी स्टेनोटिक लीजन्स होती हैं, द सेंट्रल न्यूरेक्सियल ब्लॉक्स लाइक स्पाइनल एंड एपिड्यूरल दे कैन बी हैजर्डस, स्पेशली अगर सीवियर स्टेनोसिस है. तो अगर हमें यूज करने नहीं चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, लेकिन न्यू बुक्स कह रही हैं दे आर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन. अगर आप इन्हें यूज करें तो लो डोज में यूज करें. आइडियली आप एपिड्यूरल को प्रेफर करें ओवर स्पाइनल, इट इज मोर टाइट्रेटेबल दैट वे. और आप हीमोडायनेमिक सपोर्ट लाजमी साथ रखें, पहले ही स्टार्ट कर दें. अगर हमें हीमोडायनेमिक सपोर्ट देनी ही है तो ऑब्वियसली हम लोग को अल्फा वेसोकंस्ट्रिक्टर्स प्रेफरेबल है क्योंकि वो हार्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, लाइक फेनाइलेफ्रीन एंड मेटारोमिनोल. लेकिन ये एसवीआर हाई कर देंगे, हाई नॉर्मल रखेंगे और हार्ट रेट को नहीं बढ़ने देंगे. अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी अफेक्टेड है तो आप डिप्यूटामीन भी यूज कर सकते हैं टू अवॉइड हार्ट फेलियर. पोस्ट ऑप के अंदर अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो या आपको सस्पिशन है कि वो हो सकता है, तो आप लाजमी आईसीयू में पहले ही एडमिट करें इस पेशेंट को. दे हैव अ लो थ्रेशोल्ड, नॉट एज मच एज एओर्टिक स्टेनोसिस बट दे स्टिल डू. अगर हार्ट फेलियर है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें विद डायूरेसिस, सीपैप बाईपैप दिया जा सकता है. इफ देयर इज एविडेंस ऑफ एम्बोलाइजेशन, एंटीकोagulation यूज करें. एडिक्वेट एनाल्जेसिस वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग को, क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट को पेन होगी तो उसका हार्ट रेट बढ़ेगा एंड ही कैन डिकम्पनसेट. So मूविंग ऑन टू द question माइट्रल is रिगर. my जी मैम. question is from the audience. मैं इन लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि जैसे डॉक्टर फरजाद ने कहा कि न्यूरोलैक्सियल ब्लॉक्स या सेंट्रली न्यूरोलैक्सियल ब्लॉक्स जो हैं एपिड्यूरल या स्पाइनल, they are relatively contraindicated. Why is that? Anybody from the audience?
स्टेनोटिक लेजन्स में क्यों अवॉइड करने चाहिए या टाइट्रेट मैडम करके डोसेस एसवीआर देनी डिक्रीज चाहिए? होता है। अभी शुरू में डॉक्टर फरजाद ने कहा था कि एसवीआर आपको डिक्रीज होना नहीं देना चाहिए, हाइपोटेंशन है तो प्रॉम्प्टली ट्रीट करें, इसलिए। ठीक है। और एक खास वर्ड यूज करते हैं, यस, डॉक्टर नायाब ने कहा है फिक्स कार्डिक आउटपुट स्टेट्स होती हैं स्टेनोटिक लेजन्स के अंदर। तो जो भी फिक्स कार्डिक आउटपुट स्टेट की जब भी कंडीशन होगी, उसमें आपने कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जिससे आपने सडनली पेशेंट को एसवीआर कम करनी है या आपने वेजोडाइलेट करना है। सो इसलिए सेंट्रल नोलैक्सियल ब्लॉक्स जो है वो अवॉइड करें, या करने भी हैं तो टाइट्रेट करके डोजेस दें। सेकंड, हमेशा स्टेनोटिक लेजन को डील करते हुए ये याद रखें कि आपका टारगेट जो पेरियोपरेटिव पीरियड में है दैट इज स्लो एंड टाइट। स्लो से हार्ट रेट आपने नियर द लो नॉर्मल रेंज में रखना है, 60 to 80 के बीच में, 60 to 70 के अराउंड रखना है, ठीक है। और टाइट से मतलब ये है कि आपने एसवीआर जो है उसको आफ्टर लोड को मेंटेन रखना है और एसवीआर अपने ज़्यादा रखनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये होती है कि आपने पल्मोनरी एडीमा में जाने से पेशेंट को बचाना होता है, आपने पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है वो वर्स नहीं होने देनी। तो सारे वो फैक्टर्स जो हैं जो पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन करेंगी, लाइक हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, एसिडोसिस, ये सब फैक्टर्स जो है ये आपको अवॉइड करने हैं। सो जो पेरियोपरेटिव गोल्स है वो यही है, यू कीप द हार्ट रेट विद इन द लो नॉर्मल रेंज लाइक 60 to 70। यस। सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को मेंटेन रखना है। और जो आपकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, उसको आपने जो है वो बढ़ने नहीं देना। तो हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, एसिडोसिस, ये सारे फैक्टर्स जो है ये आपने अवॉइड रखने हैं, ठीक है। बाकी कोई चीज़ें हैं जैसे कि डॉक्टर फरजाद ने मेंशन किया कि आपने अपना रिदम भी साइनस रखना है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए जो जो प्रैक्टिस मैंने बताया वैसे उसको यूज़ करना। चलें नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू मैम। पहले हम लोग स्टेनोटिक लीजन्स कर लेते हैं, लाइक मैडम सेड, सो वी विल मूव टू एओर्टिक स्टेनोसिस फर्स्ट. So, causes of aortic stenosis. Again, the most common cause is rheumatic heart disease, and the second most common cause is senile calcific age-related disease. 2% of the cases can be because of congenital bicuspid aortic valves, and very rarely it can present with Paget's disease, radiation, and SLE. Now, the pathophysiology of aortic stenosis is the left ventricular outflow tract obstruction, which is also seen in hypertrophic obstructive cardiomyopathy. लेकिन as opposed to that disease, इसके अंदर एक fixed LVOT obstruction है, जबकि hypertrophic obstructive cardiomyopathy के अंदर एक dynamic obstruction है. So, and this all needs test, and as a result, आहिस्ता करके लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपर देयर विल बी डिक्रीज कोरोनरी फ्लो. एज वी नो कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी फ्लो है वो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड होता है. सो अगर प्रेशर्स रेज हो जाएंगे तो टुवर्ड्स द एंडोकार्डियम इनसाइड ऑफ द हार्ट, तो वो जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो बंद हो जाएंगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रेशर, और दिस कैन अफेक्ट द कोरोनरी फ्लो. So these patients are more likely to have an MI during the perioperative period. In fact, इनके अंदर presenting sign ही angina होता है. When a large pressure gradient is required to maintain the cardiac output across the stenosis, eventually the cardiac output would fail to increase in patients with severe stenosis when there is increased demand like exercise or surgery or anesthesia even. अगर सिस्टोलिक डिस्फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, then it can lead to a dilated left atrium and atrial fibrillation. और डाउनस्ट्रीम जाएं तो फिर पल्मोनरी वेस्कुलेचर भी इफेक्ट हो सकता है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, इवन राइट साइडेड हार्ट फेलियर तक बात जा सकती है, डिपेंडिंग कि कितना टाइम हो गया इस डिजीज को और कितना पुअर कंट्रोल है. The symptoms are dyspnea, angina, syncope. Obviously, अगर ये fixed cardiac output state है, again, patients को lightheadedness अक्सर feel होती है, and even के first presenting complaint can be because के there was a sudden loss of consciousness, वो बार-बार गिरते हैं.
signs are pulsus parvus, that is a narrow pulse pressure, pulsus tardus because it is a slow rising pulse, because stiff ventricles हैं तो S4 heart sounds भी आएंगी इसमें, ejection systolic murmur at the right second intercostal space or the aortic area. Labs के अंदर आपको left ventricular hypertrophy, LV strain pattern, poor R wave progression, STT abnormalities, P mitral अगर left atrium भी dilate हो गया और atrial fibrillation भी present कर सकते हैं. Chest X-ray के अंदर it is usually normal. अगर हम लोग बहुत गौर से देखें तो हमें पोस्ट स्टेनोटिक डायलिटेशन ऑफ एओर्टा नजर आ सकती है, और एज रिलेटेड सेनाइल एओर्टिक स्टेनोसिस है या एओर्टिक स्क्लेरोसिस है तो कैल्सिफाइड एओर्टिक एन्युलस भी नजर आ सकता है. नो ये जो आपके सामने मैंने पिक्चर शेयर किया, एओर्टिक एरिया इस आदमी पर 1 पर नजर आ रहा है. आप यहाँ पर सुनेंगे तो एक इजेक्शन क्लिक नजर सुनाई देगी आपको राइट आफ्टर द S1 हार्ट साउंड. सो ये सिस्टोलिक मर्मर है. इट इज अ क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर. ये पहले इंटेंसिटी में राइज होगी और फिर इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी बिफोर द स्टार्ट ऑफ S2. इसके अलावा एक तीर भी बना हुआ है 1 से ऊपर, ये रेडिएट करती है समटाइम्स इनटू द कैरोटिड आर्टरीज. बाय मिनिमम हम लोग 2 एरियाज अगर सुनते हैं तो हमें एक एपिकल एरिया सुनना चाहिए और दूसरा एओर्टिक एरिया सुनना चाहिए, खास तौर पर बूढ़े लोगों में, एल्डरली पीपल में. फिर नंबर 2 पॉइंट जो है वो एपिकल एरिया पे आपको नजर आ रहा है, वहां पर आप सुनेंगे तो S4 हार्ट साउंड आ सकती है आपको बिकॉज ऑफ द स्टिफ वेंट्रिकल्स. नीचे मैंने एक लिखा हुआ गैलावार्डिन फिनोमेना. इट इज द सिस्टोलिक मर्मर ऑफ द फाइब्रोकैल्सिफिक एओर्टिक स्टेनोसिस seen with aging. It has a harsh and noisy quality in the aortic area, but it is musical over the apex area. तो एपिकल एरिया पर भी आपको एक म्यूजिकल क्वालिटी की वो सिस्टोलिक मर्मर सुनाई दे सकती है. सो सिवियरिटी ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस सारी लीजन्स में से सबसे इंपॉर्टेंट ये है और ये आपको याद होनी चाहिए. If the valve area is less than 1 centimeter square, just like the mitral stenosis, this would be severe aortic stenosis. But some people go up step further और कहते हैं कि अगर 0.7 से कम है एरिया तो it is critical. The moderate is 1 to 1.5, same as mitral stenosis, and mild is greater than 1.5, same as mitral stenosis. लेकिन mitral stenosis का जो normal area होता है 4 to 6 होता है, इसका जो normal area 2.5 to 4 है. The mean gradient is also important across the aortic valve. If it is more than 40, it is severe, and if it is more than 50, it is critical. Normal, it is less than 20, less than 10 actually. So asymptomatic patient है अगर, और वो टॉलरेट कर सकता है इलेक्टिव सर्जरी अगर वो माइनर या इंटरमीडिएट सर्जरी है. पर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जिनको मेजर सर्जरी required है, they should be considered for aortic valve replacement first. और इसका डिसीजन मीन ग्रेडियंट से लिया जा सकता है. If it is greater than 50, then they should get a valve replacement before that elective major surgery. For the symptomatic patients, they should always get the valve replacement before this elective surgery. For our anesthesia plan, the heart rate हम लोग को चाहिए कि लो नॉर्मल रखें, same as mitral stenosis, and avoid extremes. Rhythm should be sinus and treat any arrhythmias via cardioversion very promptly. SVR आप अपना normal high रखें, tight रखें, slow and tight again. Treat hypertension with alpha vasoconstrictors wherever you can. Preload आप अपना adequate रखें. Maintain euvolemia. हार्ट इतना फ्लूइड ओवरलोड ना कर दें कि पेशेंट को हार्ट फेलियर हो जाए. और कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर अफेक्टेड है तो कार्डियो डिप्रेसेंट्स अवॉइड करें, और हो सके तो आप सपोर्ट भी यूज कर सकते हैं लाइक डोब्यूटामीन. माइंड यू इन पेशेंट्स को इजीली एमआई हो जाता है तो डोब्यूटामीन विल एक्चुअली इंक्रीज द चांसेस ऑफ दैट. रिस्क हमारे पास इसके अंदर जो मैंने सिर्फ इस डिजीज के अंदर डाला है वो मायोकार्डियल इस्कीमिया है. Arrhythmias are similarly common because of dilated LA, and so is congestive heart failure. Cardiac arrest definitely हो सकता है, और sudden cardiac death मैंने सिर्फ इसी disease में डाली है because most chances इस disease के साथ हैं होने के.
मोनिटर्स अगेन आपने ए लाइन इसमें लाजमी डाल देनी है एंड डू दैट बिफोर द इंडक्शन। एनेस्थीसिया में आप जहां पर यूज कर सकते हैं पेरिफेरल नर्व ब्लॉक या लोकल एनेस्थेटिक इन्फिल्ट्रेशन यूज करें। अगर इट इज नॉट पॉसिबल तो सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉकेट से बेहतर है कि आप पेशेंट को जीए दे दें। अगर सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉकेट आप यूज करते हैं, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, यूज इट विद extreme caution and don't be surprised if hemodynamic instability follows. Ideally alpha vasoconstrictors ही use करने चाहिए like phenylephrine and metorominol, and they have a very low threshold for ICU admission. In fact अगर ये ठीक भी हैं तो आप ICU में ही admit करें and ensure adequate analgesia again. Moving on to mitral regurgitation. The causes of mitral regurgitation can be divided into. अस्सलाम वालेकुम फरजाद, थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकते हो इस वक्त या आप एंड पे रख लें क्वेश्चन? सॉरी मुझे समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की। मैंने कहा अभी एक कुछ चीज बीच में इंटरप्ट कर सकते हो या एंड पे कर दें डिस्कशन? नहीं प्लीज कर दें बिकॉज मिक्सअप हो जाएंगे डिजीजेस। जो आप थोड़ा सा एसवीआर के कंसेप्ट से बात कर रहे थे ना, जो माइट्रल स्टेनोटिक लीजन है इसमें रादर अ लिटिल बिट लोअर एसवीआर इज रिकमेंडेड। होता क्या है कि एसवीआर का इफेक्ट आता है आपके वेंट्रिकल के बाद, यानी एओर्टिक वाल्व के बाद आता है। तो अगर आप माइट्रल के अंदर एसवीआर को बढ़ाते हैं तो हार्ट का उल्टा लोड इतना बढ़ जाता है कि एक तो वेंट्रिकल की फिलिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, दूसरा वेंट्रिकल जो है वो पूरा फिल ना होने की वजह से, एसवीआर भी ज्यादा होने की वजह से उसका वर्कलोड बढ़ जाता है। रादर आपको माइट्रल वाल्व के अक्रॉस जो है प्रेशर ग्रेडियंट में वेंट्रिकुलर प्रेशर को कम करना होता है ताकि एटीएस से वहां पे फ्लो बेहतर हो सके। ओके सर, सो तो हमारा गोल होना चाहिए कि नॉर्मल एसवीआर रखें है, उसके अंदर जो है वो एसवीआर माइल्डली लोअर साइड इज रिकमेंडेड, जो मुझे याद आता है उसको रिवाइज कर लेना। और जो एओर्टिक स्टेनोटिक लीजन हैं इसमें नो डाउट यू नीड अ हाई। गॉट इट सर, ठीक है। दिस इज वेरी एक्चुअली ट्रिकी बिकॉज कुछ जगहों पे लिखा होता है लो नॉर्मल और कुछ जगहों पे लिखा होता है लो टू नॉर्मल, और ये डिफरेंट लिटरेचर्स में इसमें माइट्रल के केस में मैं आपको दूसरी चीज बताऊं कि अगर माइट्रल की लीजन माइल्ड टू मॉडरेट है तो आपको कोई ज्यादा हार्ट रेट और एसपीआर दोनों को जरूरत से ज्यादा ना कम करना ना ज्यादा, यू जस्ट कीप इट इन नॉर्मल वैल्यू। अगर क्लियर माइट्रल लीजन है, माइट्रल स्टेनोटिक लीजन, तो तब थोड़ा सा हार्ट रेट को भी लो रखना कि फिलिंग का टाइम मिल जाए वेंट्रिकल को, और थोड़ा वेंट्रिकल को जल्दी एम्प्टी करने के लिए आप स्लाइटली लो नॉर्मल एसवीआर इज रिकमेंडेड, हाई उसमें फिर भी नहीं करेंगे। गॉट इट सर। Yes, we have to keep them near to the physiology as possible. Thank you for your input, sir. अच्छा, आर्टिक स्टेनोसिस अभी डिस्कस करने लगे? जी सर, एओर्टिक स्टेनोसिस अभी डिस्कस किया हमने सर। एओर्टिक स्टेनोसिस में कर स्टेनोटिक लीजन जिसमें दोनों कर मेरा लिए हैं सर। क्वेश्चन था, हमने पिछले दिन एक केस था आर्टिक स्टेनोसिस का, 72 इयर्स ओल्ड मेल, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर के साथ। तो वो हमने 0.7 उसका एरिया था, उसमें कुछ हमारे रेजिडेंट्स के भी कंसर्न्स थे बिकॉज मैंने उसको यूनिट स्पाइनल लगाया था डीएचएस के लिए। मैं आज डिस्कस भी कर लूँ कि हमने वो डिसीजन क्यों लिया था। किसी रेजिडेंट को याद है ये केस? हेलो सर नेशनल हॉस्पिटल ये में 2-3 दिन पहले ही हुआ है आई थिंक। नहीं, ये नहीं, डॉक्टर्स में हुआ, लास्ट डॉक्टर्स में फ्राइडे हुआ को होगा सर जी। सर डॉक्टर आसिफ है, वो कह रहे हैं उन्हें ही कैन रिकॉल द केस। हाँ, थर्सडे को हुआ था। तो उसमें जो है वो बेसिकली जो है वो रिपेयर्ड भी थी। तो उसमें फैमिली को जो है वो पहले किसी का काउंसलिंग हुई कि जी अगर जीएन मिला तो ये उठेंगे नहीं। उसके बाद फिर कार्डियोलॉजी वालों ने भी कह दिया कि नहीं, जिसको आप स्पाइनल में ना करवाएं और जीए में ना करवाएं, क्योंकि उसकी सीएलडी की डिजीज थी। तो अभी जो बात इसमें जब हो रही थी कि वल्वुलर एरिया और ट्रांसफार्मर ग्रेडियंट के ऊपर, और तीसरा इसमें जो कंपोनेंट देखने वाला है वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि मरीज के मेट्स कितने
जो हम बात करते हैं ना कि सिम्टोमेटिक और नॉन सिम्टोमेटिक, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसके मेट्स हैं। तो तीनों एरियाज को कब देख के फिर आपका डिसीजन होना चाहिए। अगर आपका एक एरिया कहता है कि जी 12.7 एरिया है आर्टरी का, लेकिन आपके मेट्स कहते हैं कि मरीज के मेट्स तो जो है वो बहुत रीजनेबल है एट एज ऑफ 75, और उसके बाद ट्रांसफार्मर ग्रेडियंट भी जो है वो उसका इतना बुरा नहीं है। तो ये तीनों में से अगर एक चीज जो है पर्टिकुलरली जो सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे होगी वो मेट्स होंगे। तो उसने भी हमने इस मरीज के ऊपर इसी वजह से डिसीजन किया था। एक तो ये कि फैमिली थोड़ी सी इंक्लाइंड थी टुवर्ड्स स्पाइनल, बिकॉज उसकी लिवर डिजीज भी थी और उनको कंसर्न थे, पेशेंट भी काफी था, ओल्ड एज पेशेंट था। उसके बाद पहले उनकी काउंसलिंग भी कुछ इस तरह की हुई थी, देवर मोर इंक्लाइंड बीइंग अ डॉक्टर, उनकी फैमिली में डॉक्टर भी थे साथ जो है वो। उसके बाद कार्डियोलॉजी वाला हमने जब उसकी एको की थी, तो उसमें उसकी जो कंट्रक्टिलिटी है और मायोकार्डियम की जो थिकनेस है वो बहुत अच्छी थी। बहुत ज़्यादा कोई हाइपरट्रॉफिक हार्ट नहीं था, और कोई बहुत ज़्यादा लैग भी नहीं था उसमें कि हम कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर हमने ये डिसीजन किया था कि हम उसको यूनिलेटरल स्पाइनल में करवाते हैं। ऑल दो के बाद में थोड़ा सा पार्शली भी हुआ स्पाइनल, हमें कुछ एगमेंट भी करना पड़ा, लेकिन वो पेशेंट ठीक ही रहा। तो अब जब डिसीजन करते हैं, मेरा जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन भी है कि मुझे ये बताया, आपने अभी लिटरेचर सारा शो कर रहे थे, सारी बात कर रहे थे, व्हाट अबाउट मेट्स तो अपनी जगह ठीक है, व्हाट अबाउट वाल्वुलर एरिया और ट्रांसवाल्वुलर ग्रेडियंट, इन दोनों में से किसकी प्रेफरेंस ज्यादा होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, जो हमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव चीजें जहाँ सिवियरिटी ऑफ डिजीज को बेहतर बताता है? सर ट्रांसपल्मोनरी ग्रेडियंट। यस, एब्सोल्युटली फाइन फरजाद, क्योंकि उस दिन भी जो है वो जितने लोगों ने बात की थी वो सब जो है वो वाल्वुलर एरिया के ऊपर बात कर रहे थे। ट्रांस वाल्वुलर ग्रेडियंट के ऊपर किसी रेजिडेंट नहीं है, किसी और सीनियर ने बात नहीं की कि इसका ट्रांस वाल्वुलर ग्रेडियंट कितना है। ठीक है डॉक्टर आसिफ, बात समझ में आई? ओके, यस सर। हेलो, चलें, गुड, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। यहाँ पे अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा 2 पेन्स ऐड कर दूं। श्योर, देखिए, ये सारी जो बातें की जा रही होती हैं ना कि आपका हार्ट रेट इतने में रखो, टेकार्डिया नहीं होने देना, हाइपोटेंशन नहीं होने देनी, रीजनल एनेस्थीसिया नहीं देना, ये एक कॉन्सेप्चुअल बातें हैं कि आपने एक मॉडल बनाया कि जिसमें कि आपने कहा जी एओर्टिक स्टेनोसिस होती है, और एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर क्योंकि वेंट्रिकल की जो आउटफ्लो है वो उसके आगे एक धक्का लगा हुआ है, लिहाजा आपका ये पेशेंट जो है ये फिक्स कार्डियक आउटपुट पे है, जब अगर जरूरत पड़ेगी तो वो टेकार्डिया होगा। तो वो सब कहानी जो आप पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि हाइपरट्रॉफिक भी मायोकार्डियम है, लिहाजा इस्कीमिक होने के लिए प्रोपेंसिटी भी ज्यादा है, टेकार्डिया होगा तो इस्कीमिया भी होगा, और टेकार्डिया के साथ कार्डियक आउटपुट भी नहीं बढ़ा सकेगा बिकॉज आगे एक फिक्स स्टेनोटिक लीजन पड़ी है, एंड ऑल दैट इज ट्रू, बट इट इज गोइंग टू गिव यू अ मेंटल पिक्चर ऑफ व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट। बट प्लीज रिमेंबर कि जब आप एक मरीज को देखते हैं तो दैट पेशेंट, ईच पेशेंट इज अ लिटिल स्लाइट वेरिएशन ऑफ दैट वन थिंग। जैसे डॉक्टर लियाकत ने कहा, जैसे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हिस्ट्री होती है कि आपके डे टू डे एक्टिविटी में कब पेशेंट कितना क्या कुछ टॉलरेट कर सकता है, और वहां पे केयरफुल हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक चीज और जहन में रखिएगा कि बहुत सारे पेशेंट्स, हम इंसान की एक आदत होती है कि जैसे जैसे मेरी वो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं अपनी लाइफ को मॉडिफाई करता जाऊंगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और अगर वो आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करता जाऊंगा, और मुझे महसूस भी नहीं होगा कि मैं जो आज से 5 साल पहले था उतना नहीं रह गया। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि क्या तुम 4 मील भाग सकोगे, कि मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल भाग सकूंगा। क्वेश्चन अगला है कि जी आप आखिरी बार कब 4 मील भागे थे, दैट्स मोर रिलेवेंट। दूसरा जो बात थी स्पाइनल की, I don't think in today's world, day and age, particularly for fracture neck or femur, anybody would say that spinal anesthesia is absolutely contraindicated. I mean, for most of the lesions, what you do is you give a fascia iliaca block, put them on a side,
give them a small dose of local anesthetic plus some opioid or some additive, keep them there for 10 minutes, have a unilateral block and fix the hip. वो दोनों मिला के between fasciala का block and spinal, आपका वो hip fracture fix हो जाता है. Am I wrong, Dr. Liaquat? And most of the times you don't have enough any hemodynamic perturbations. मैं तो देखा है कि ऐसे cases में hip fracture कराते हुए patient's blood pressures hardly fall. And second, अगर आप vasopressor दे रहे हैं तो remember वो vasopressor SVR को effectively आपके SVR को तो बढ़ा रही हैं, but कार्डियक जो है ना उसका आफ्टर लोड या वेंट्रिकुलर वॉल स्ट्रेन को नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि वहां ऑलरेडी एक आगे स्टीनोटिक लीजन पड़ी हुई है, लिहाजा वो हार्ट के ऊपर कोई स्ट्रेन नहीं डालेंगे फर्दर इफ यू गिव देम vasoconstrictors. So pure alpha agonists or vasoconstrictors titrated to get that desired blood pressure given timely can actually avoid hypotension. Got it, sir. Yes. So अभी हमारे लिटरेचर के अंदर भी यही शो हो रहा है कि जहां पे पहले लिखा होता था कि स्पाइनल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अब लिखा जाता है कि इट इज रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड. सो इट कैन बी सेफली यूज इन दीज पेशेंट्स इफ वी आर केयरफुल. और हम लोगों को अपने गोल्स पता हैं, एंड अगर हम लोग लो डोज यूज करते हैं, वेसोकंस्ट्रिक्टर्स यूज करते हैं, एडजुवेंट्स यूज करते हैं और साथ एक रीजनल ब्लॉक भी लगा देते हैं, सो इट कैन एक्चुअली प्रोवाइड a safe anesthesia for the patient. मैं एक सर की बात को सेकंड करूंगा कि जो फेशियल या का ब्लॉक है ना, ये की है इन पेशेंट्स में. जब हम ये नहीं लगाते और हम इन पेशेंट्स को पोजीशन बनाने के लिए केटामीन या कोई दूसरी दवाइयां देते हैं तो फिर चीजें हमारे हाथ से निकलना शुरू हो जाती हैं. हमारी भी ट्रेडिशनल पहले प्रैक्टिस ये थी कि हम जो है पहले कोई केटामीन मिडाजोलम दे के पोजीशन बना के फिर लगाते थे. लेकिन जो उसमें हमारा जो रिसेंट पिछले 3-4 सालों में 7-8 सालों में जो चेंज प्रैक्टिस है वो सिग्निफिकेंटली ये शिफ्ट हुआ है कि जिन मरीजों को हम फेशियल एका लगा के अच्छी तरह पेन फ्री करके करते हैं, दे रिमेन्स वेरी स्टेबल. क्योंकि एक दफा जो उसकी जो पेन होती है, जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होनी है ब्लॉक से स्पाइनल से पहले, वो आप फिर सेडेशन दे के और फिर एक विशियस साइकिल में चलते हैं. तो आई थिंक जो हमें प्रैक्टिस को फिक्स करना चाहिए कि ये ब्लॉक मैंडेटरी होना चाहिए इन पेशेंट्स में कि आप 2 घंटे पहले लगा दें. व्हाई टू वेट कि ये थिएटर में कब मरीज ने शिफ्ट होना. I would take it one step further. होना ये चाहिए कि हमें जब भी पता चला है कि हिप फ्रैक्चर का पेशेंट आया है तो हमें उसी वक्त कहना चाहिए चलो चल के उसको फेशियल का ब्लॉक लगा दो. आई मीन रेफरेंस देना जैसे भी है, वो इंडस में वहाँ उनका जो ईआर फिजिशियन है वो बोर्ड सर्टिफाइड फिजिशियन है, वो हिप फ्रैक्चर आता है वो उसको ईआर के अंदर ही हिप वो ब्लॉक लगा देता है. अब वहां पे नो पेशेंट कम्स टू अस विद पेन. बिल्कुल सर, हमारे भी बल्कि पिछले वीक भी एक पेशेंट था जिसको सीवियर पेन हो रही थी और सुबह सर्जरी थी, तो हमने उसको शाम को ही उसको ब्लॉक लगा दिया था और अगले दिन सुबह तक वो ठीक रहा. अगले दिन सर्जरी भी उसकी आराम से होगी. आई थिंक दैट शुड बी द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो हमारे यहाँ हमारे हॉस्पिटल में हमारे डिपार्टमेंट में होनी चाहिए. आई एग्री विद दैट सर, एब्सोल्युटली. थैंक यू. Thank you for your input, sir. Should I move with the presentation? Yes, please. Okay. So causes of mitral regurgitation, they can be divided into the pathology related to the leaflets, as seen as rheumatic heart disease, which is also the most common cause. Also mitral valve prolapse is also another cause of it, and connective tissue diseases. It can another subclass is caudal. The rupture of caudae can be seen in acute myocardial infarction and acute infective endocarditis. तो ये ज़्यादा acutely present करते हैं. Then there is papillary muscle dysfunction, जो acute और chronic MI दोनों में हो सकता है, and hypertrophic obstructive cardiomyopathy में भी देखा जाता है. And there are diseases that causes the dilation of the left ventricle, and as a result जो orifice होता है mitral valve का, वो भी उसकी वजह से expand हो जाता है, and that allows for the regurgitation to occur. This is seen in dilated cardiomyopathy and myocarditis.
Moving on to pathophysiology, as much as 50% of the volume in the left ventricle, it can come back into the left atrium through an incompetent mitral valve closes. The ejection fraction is therefore supranormal. तो इन patients के अंदर left ventricle के दो मकसद होंगे, एक तो आगे forward flow करना into the aorta, and then also to compromise some of the blood volume that regurgitates back into the left atrium. So it works more than a normal heart, and the ejection fraction and the decompensated states can be supranormal. A compensatory left ventricular hypertrophy develops, pulmonary congestion and pulmonary hypertension and right heart failure will ensue because a heart overwork कर रहा है ताकि वो forward flow भी बढ़ा सके, लेकिन at the same time वो regurgitant flow भी बढ़ा रहा है, तो congestive heart failure can occur. The degree of regurgitation is determined by afterload, size of the mitral valve orifice, and the heart rate. Increased heart rate reduces the time for regurgitation in systole and time for LV filling in diastole. Decreasing SVR and thereby afterload also decreases MR. तो हमारे यही दो गोल्स हैं. अगर हम लोग हार्ट रेट बढ़ा कर रखेंगे तो रिगर्गिटेशन का टाइम कम हो जाएगा, और अगर हम लोग SVR कम रखेंगे तो हम फॉरवर्ड फ्लो इनटू द एओर्टा एक्चुअली इंक्रीज कर रहे हैं, and backward flow into the left atrium decrease कर रहे हैं. Symptoms are dyspnea, hemoptysis, palpitations, hoarseness can be seen again due to the dilated left atrium. Fatigue is there, orthopnea and PND heart failure के signs हैं. Irregular pulse might be present. Pulmonary rails are indicative of heart failure. Signs of right heart failure can be present. On the precordium, we can see a displaced apex speed, laterally and downwards, because there will be a dilated heart. S3 heart sound because of cardiac heart failure, congestive heart failure, and a pan-systolic murmur at the apex, but this murmur radiates throughout the pericardium, even into the axilla. And ECG mein we can see a P mitral and atrial fibrillation with a dilated left atrium, a poor RV progression, and in some patients RV strain. Chest X-ray will show us cardiomegaly and curly B lines in case of heart failure. So in mitral regurgitation, apical area pe, which is indicated by 1 on this man, it will, auscultating it will show us a holosystolic murmur, and it may obscure the S1. This can radiate into the precordium or even into the axilla due to the intra-atrial backflow jet. This murmur will obviously, being a left-sided lesion, will become softer with inspiration, whereas the murmur of the tricuspid regurgitation will become louder with inspiration. It is of rumbling quality, and S3 heart sound can be appreciated in mitral regurgitation. So the severity of mitral regurgitation, this is beyond our scope because हम लोगों के पास इको के अंदर grades लिखे हुए होते हैं, सिर्फ grade 1, 2, 3, 4, वो उन्होंने खुद से calculate कर लिए होते हैं. पर if we want to go a step further, हम regurgitant fraction को use कर सकते हैं for grading. If it is greater than 50%, it is grade 4. If it is less than 30%, it is grade 1 or a mild form. In asymptomatic patients, they can tolerate non-cardiac surgery well. In fact, दोनों aortic regurgitation, mitral regurgitations के लिए same rules apply. But patients with poor functional capacity, like less than 4 METs, would need optimization and valve surgery before elective non-cardiac surgery. Our goals are to keep the heart rate high normal, so there's less time for the regurgitation to happen. Keep the rhythm sinus and treat the arrhythmias promptly. Keep the SVR low normal, because जब left ventricle contract करेगा तो maximum blood उस जगह पर जाएगा जहाँ पर कम resistance है. अगर aorta में कम resistance होगी तो वो उधर जाएगा ज़्यादा. So keep the SVR low normal. Forward jet इससे increase होगा और regurgitant jet इससे कम होगा. Preload में we have to keep the patient euvolemic, avoid fluid overload. Contractility, if it is reduced, use the inotropes, and if there's pulmonary hypertension present, avoid hypoxia, hypercarbia, and acidosis. This is always in the plan.
वैसे भी अगर पेशेंट को नहीं भी होता, वी अवॉइड दीज 3 थिंग्स regardless. In risks, we have risk of cardiogenic shock, heart failure, arrhythmias. There's a risk of systemic embolization because इसके अंदर भी left atrium dilated होता है due to regurgitation, and cardiac arrest can happen. Monitors में we can use A-line अगर severe mitral regurgitation है, otherwise mild to moderate के अंदर अक्सर नहीं चाहिए होती. अगर आप हर चीज को कंट्रोल में रखें, vasopressors वगैरह यूज करें, it is not always needed. Central neuraxial blocks are usually well tolerated in patients with regurgitant diseases, पर mind you बहुत सी diseases होती हैं कि स्टेनोसिस के साथ भी regurgitation हो रही होती है. In that case हम लोग इनमें से जो ज्यादा severe होती है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं. अगर mitral stenosis ज्यादा severe है, so we have to be very cautious using the neuraxial blocks. But if regurgitation is more severe, we still have to be cautious, but it can be usually well tolerated. For hemodynamic support, we use the norepinephrine because we have to keep the heart rate high. And if there's low contractility, we can use dobutamine. If there's pulmonary hypertension, so we can use milrinone even. For post-op care, ICU admission is usually not required. If there's heart failure, we should treat it symptomatically, diuresis. If there's embolism protocol अपने ICU का employ करें. और अगर arrhythmias हैं, use antiarrhythmics. I'm sorry अगर कोई और take over कर दे. I think मेरी बेटी गिरी है. I need to go and check on her. Is that okay? Okay. Yes. डॉक्टर सदफ आप प्लीज देख लें, तो कोई डिस्कशन हो तो फिर कर लेते हैं. सर आई थिंक नेक्स्ट इज मेरे पास वो कंट्रोल नहीं है उसका प्रेजेंटेशन का. ये स्क्रीन उन्होंने खुद से शेयर की हुई थी. So far, we have covered the stenotic lesions and the mitral valve regurgitant lesion. So aortic valve regurgitant lesion जो है that is there. अगर रिगर्जिटेशन लीजन को पेशेंट आप करवा रहे हैं और आप जीए में करवा रहे हैं, समाउ कोई रीजन है कि आप जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ रहा है, तो फिर अगर पेशेंट जो है वो उसमें फ्लो ओवरलोड में जाता है या हार्ट फेलियर में जाता है, तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे रेजिडेंट्स. या कोई सेंट्रल नर्वस ब्लॉक्स की कॉन्ट्राइंडिकेशन है और आप स्पाइनल नहीं लगा रहे, आप जीए में केस करवा रहे हैं, तो जो उन्होंने गोल्स बताया उसमें तो यही है कि ना कि आप एसवीआर को डिक्रीज करेंगे, तो पेशेंट जो है वो अगर सिम्टोमेटिक है तो जरा बेहतर हो जाएगा. तो आप कैसे मैनेज करेंगे फिर ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया? जी एनीवन फ्रॉम द रेजिडेंट. सर जी पूछना चाह रहे हैं कि अगर रिगर्जिटेंट लीजन में किसी भी वजह से हम रीजनल ब्लॉक नहीं दे सकते, जीए देना पड़ रहा है, तो हमारे गोल्स क्या होंगे और हम इसे कैसे मैनेज करेंगे? मैडम आई थिंक हीमोडायनामिक गोल्स तो जनरल एनेस्थीसिया में भी सेम ही होंगे. हायर नॉर्मल हार्ट रेट रखेंगे, लोअर नॉर्मल एसवीआर रखेंगे, डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया एडिक्वेट रखेंगे ताकि हमारे पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन हाइपोटेंशन की तरफ ना जाए. FiO2 हम उसकी हाइपोक्सिया प्रिवेंट करेंगे. लो कैसे रखेंगे? एसवीआर कैसे लो करेंगे आप अगर सर पेशेंट हम जो जो है वो एसवीआर इंक्रीज करते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं. सो हम लोग एनाल्जेसिया एडिक्वेट रखेंगे, डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया हमारी एडिक्वेट होनी चाहिए ताकि इन सीएन पे लेरिंगोस्कोपी स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज ना आए, उनको हम लोग ब्लंट करने की कोशिश कर सकते हैं. माय पॉइंट है कि अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो यूजुअली वी कंसीडर कि हम इसको अगर एपिड्यूरल लगाएंगे, केस करवाएंगे एपिड्यूरल में,
या स्पाइनल में, तो इसका एसवीआर डिक्रीज होगी और पेशेंट जो है सिम्टोमेटिकली बेहतर हो जाएगा, और इसके जो है वो इंट्राऑपरेटिव कोर्स बेहतर हो जाता है सेंट्रल नर्वस ब्लॉक्स के साथ। अगर आप जीए दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसमें सारे प्रोसेस वो होने हैं कि जहाँ एसवीआर थोड़ी कंपैरेटिवली हायर ही रहेगी एज कम्पेयर टू सेंट्रल नर्वस ब्लॉक्स। अगर आपको इंट्राऑपरेटिवली पेशेंट मिलता है कि उसके क्राफ्ट पहले से बढ़ गए हैं या कोई ऐसा सिनेरियो हो रहा है, तो फिर आप एसवीआर को डिक्रीज करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं। नाइट्रोनॉल दे दें, टैकी करेगी, एसवीआर डिक्रीज करेगी। जैसे कि फिर आपको आर्टेरियल डायलेटर्स की तरफ जाना पड़ेगा ना। अगर आप इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट मरीज टॉलरेट कर सकता है, प्रेशर हाइपोटेंशन इज नॉट द मेजर इशू, तो आप इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट्स को भी यूज कर सकते हैं, दैट दे आर डिक्रीज एसवीआर सिग्निफिकेंटली, पर्टिकुलरली आइसोफ्लोरिन जो है आपकी, तो ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो है वो थोड़ा टेंटेटिव हमें रहना पड़ेगा कि हम क्या चीज यूज करें कि आप मरीज को एसवीआर को डिक्रीज करा के उसके अगर कोई लाइक सीवीपी बढ़ रही है उसकी, या उसके जो फाइन क्रैप्स आना शुरू हो जाते हैं, तो अपना हम उसको इस तरीके से भी रीएड्रेस कर सकते हैं। ये यही नहीं है कि सिर्फ स्पाइनल लगा के ही आप एसवीआर डिक्रीज कर सकते हैं। जी में भी आप ड्रग्स के साथ फार्माकोलॉजिकल एसवीआर को डिक्रीज कर सकते हैं इफ नीडेड। Okay, so far, do we have any other question or comment? I have one question जी sir. for the residents. आप में से किस किस ने वेल्वुलर लीजन के साथ पेशेंट्स करवाए हैं? तो अपेरिटी किसी ने भी नहीं करवाया? यस, डॉक्टर मानूर ने करवाया। स्टेनोटिक लीजन थी या रीगर्जिटेड? स्टेनोटिक। स्टेनोटिक कौन सा, एओर्टिक या माइट्रल? एओर्टिक स्टेनोसिस थी, सिजेरियन जी। सेक्शन करा। ओके ग्रेट, हाँ जी। जी। और बाकी और किसी ने? डॉक्टर आसिफ, आपने लास्ट केस करवाया थर्सडे को यार? तो आसिफ भी था, आसिफ कह रहा वो भी था, जुनैरा भी थी, जुबैर ने भी कराया हुआ। जी, aortic stenosis। मैं सिर्फ इसलिए ये हाईलाइट कर रहा था कि जब आप कोई एक केस भी करवाते हैं तो वो फिर आपको नहीं भूलेगा अगर आपने अच्छी तरह कर लिया है, और दैट्स द टाइम टू एक्चुअली स्टडी ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ डीलिंग विद दीस सच लीजन। अब वक्त के साथ साथ या कम से कम जो हमारे पास पॉपुलेशन सेट आ रहा है उसमें आपको रोमेटिक डिजीज के पेशेंट्स कम से कम मिलेंगे। वी आर नॉट डीलिंग विद दैट पॉपुलेशन जहाँ पे रोमेटिक डिजीज प्रेवलेंट थी, सो वो वाले हमें ज्यादा एओर्टिक स्टेनोसिस मिलेगा एल्डरली पेशेंट्स में। और सो वी नीड टू understand the dynamics of patients with aortic stenosis. प्रेगनेंसी में अलबत्ता माइटल स्टेनोसिस आपको आई एम श्योर कहीं ना कहीं जिंदगी में जरूर मिलेगा। और एक और चीज जो सारी हमने बहुत ज्यादा मर्मर्स भी याद की, क्रेसेंडो, डी क्रेसेंडो, पता नहीं सारी टर्मिनोलॉजीज। आई वंडर आजकल के दौर में ये सारी की सारी कहानी जो है वो बहुत हद तक आपकी पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड ने उसको चेंज कर दिया है। Now if you have a patient with these kind of diseases, the first thing you
would be doing in at least in the coming 1 or 2 years is putting a probe on the heart and seeing how the chambers are behaving and how the blood is flowing. Thank you very much, sir, for your feedback. Do we have any other comment or should we end the session? It's already 10 o'clock, so Thank you. thank you very much, sir. Thank you, Dr. Okay. Thank you very much, Dr. Fajad. I hope your daughter is fine. That's all for today. We are ending the session now.